میرے والد صاحب نے جب میری 11 سال ایج تھی تو انہوں نے میرے ساتھ پہلی دفعہ زیادتی کی اور انہوں نے یہ گن وغیرہ دکھا کے زبردستی تو انہوں نے کیا اس کا. اور اس کے بعد ایک بابر نام کا آدمی تھا جو مری کے رہنے والا اور اس کو وہ پٹھان ہے, اس کو بلایا, اس کے ساتھ سونے پہ مجھے مجبور کیا. کس نے؟ میری والدہ نے. وہ شخص مجھے خود کہہ رہا تمہاری ماں نے تمہارے پیسے اس لیے نہیں بھرے کہ تم ڈرامے کرو. تو کہتا تمہاری ماں نے پیسے مجھ سے اس لیے نہیں لیے کہ تم ڈرامے کرو. یہ تک اب ماں سے بندہ کوئی بات نہیں چھپا سکتا. میں نے سب الف سے لے کے یہ تک انہوں نے کیسے کیا, کیسے شروعات کی, ایسے میں نے ان کو سب بتایا. انہوں نے مطلب سب سن کر سنی انسنی بات کر دی. کتنا عرصہ آپ کے ساتھ یہ جو سارا غلیظ کام ہے یہ ہوتا ہے؟ 2.5 سال. 2.5 سال آپ نے برداشت کیا ہے؟ کیا, بہت کیا. جب جناب میں میرے گردے واش ہوئے ہیں تب مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی, اور ڈرپ لگی ہوئی مجھے اوپر سے میرا اسٹیپ فادر پھر سے وہی دھمکی دے رہا ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر کو بھی بتاؤ گی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, دنیا میں بڑے بڑے آپ نے واقعے سنے ہوں گے, بڑی بڑی کہانیاں سنی ہوں گی, لیکن آج کی جو کہانی ہے نا, یہ کہانی ماں کے لفظ سے یقین اٹھا دینے والی کہانی ہے. یقین کریں کہ میں نے بہت ساری ویڈیو میں ماں کا نام جب لیا جاتا ہے نا, یقین کریں میں رو پڑتا ہوں, کیونکہ ماں بڑی باکمال ہستی ہے. لیکن آج کی اس ویڈیو میں ایک ماں کا ایسا کردار ہے جو سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ایک ماں اپنے ہاتھوں سے اپنی ننھی منی بچی کے ساتھ زیادتی کرواتی رہتی ہے, یعنی کہ زنا کرواتی رہتی ہے. کتنی ذلیل اور کتنی خبیث ہوگی وہ عورت. میرے پاس اس سے بڑا الفاظ نہیں کہ میں اس عورت کو کیا کہوں, پھر بھی وہ ماں ہے. بات کر کے جانتے ہیں کہ کہانی کیا تھی, اصل میں معاملہ کیا تھا. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. اب میری بہن ہے, میرے بیٹوں کی طرح. مجھے یہ بتائیے گا کہ معاملہ کیا ہے. اسٹیپ فادر تھے آپ کے جس کے ساتھ آپ کی جو سگی ماں ہے وہ یہ سارے معاملات کرواتی رہی ہے. معاملہ ایسے ہوتا ہے؟ معاملہ شروع ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے, ہم اپنے والد صاحب کے پاس تھے, پھر میں ان کے پاس اپنے سگے والد, جو آپ کا سگا والد ہے اس کے ساتھ تھی. جی. اس کے بعد انہوں نے ہمیں پڑھاتے رہے ہیں, لکھاتے رہے ہیں. جب کورونا کی چھٹیاں ہوئی ہیں تب ہم آئے شاہ پور میں. جہاں پہ ہم نے کوارٹر لیا تھا وہاں پہ ایک میری ماما کی دوست رہتی ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کی والدہ زندہ ہیں. میرے بابا نے ہمیں بچپن سے یہی بتایا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. انہوں نے ایک پکس دی, وہ ہم نے اپنے بابا کو دکھائی. بابا نے کہا جی یہی ہے. تو ان کی پکس وہ دکھانے کے بعد ہمیں یقین ہوا کہ واقعی ہماری ماما زندہ ہے. بابا اگلے دن کام پہ گئے ہیں اور ہم ایک دن گزرا, اس سے اگلے دن اس عورت نے ہمیں کہا کہ میں آپ کو آپ کی والدہ سے ملواتی ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ہم گئے, اپنی والدہ سے ملے, سارا دن گزارا, بہت اچھا لگا. شام کا ٹائم ہو گیا, رات ہوگی, رات بھی گزاری, بہت اچھا لگا. میرے بابا کہتے ہیں کہ انہوں نے چونک تھانے میں ایک FIR درج کروائی تھی گمشدگی کی, اس میں ان کا کچھ نہیں بنا کچھ بھی. پھر یہ انہوں نے محنت مزدوری کر کے ہائی کورٹ میں کیس کرنے کے پیسے کچھ جمع کیے. اچھا, جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کی والدہ زندہ ہے, آپ اپنی والدہ کے پاس چلے گئے. اس کے بعد ہائی کورٹ میں کیس ہوتا ہے. کیس جب ہوتا ہے تو آپ اپنے بیان دیتی ہیں. آپ نے آف کیمرہ بتایا ہے کہ جج صاحبان نے کہا جی جب بچیوں نے بیان دے دیا ہے تو بچیاں والدہ کو دے دی جاتی ہیں. ناظرین, یہاں پر تھوڑا شارٹ کٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ان کے پہلے والد ہیں انہوں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ آپ کی والدہ مر گئی ہے, فوت ہو گئی ہے. وہ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اس عورت کا کردار کیا ہے. وہ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ وہ عورت کتنی ایک سگی ہے اپنے بچوں کی. اس لیے انہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کی والدہ اس دنیا سے کوچ کر گئی ہے, اور میرے خیال سے بہتر ہی ہوتا کہ وہ اس دنیا سے چلی جاتی کیونکہ جو اس کا کردار تھا. اچھا, اس کے بعد آپ اپنی والدہ کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی. کتنی دیر رہی ہیں اور معاملات شروع کیسے ہوتی ہیں؟ ہم اپنی والدہ کے ساتھ 2.5 سال رہی ہیں, آج سے 2.5 سال پہلے. تو ادھر ہم رہی ہیں ان کے پاس. تو میرے والد صاحب نے جب میری 11 سال ایج تھی تو انہوں نے میرے ساتھ پہلی دفعہ زیادتی کی. اسٹیپ فادر جو سٹیل ہے آپ کے پاس, اچھا, انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی اور انہوں نے یہ گن وغیرہ دکھا کے زبردستی تو انہوں نے کیا. اس کا مجھے ڈرایا دبکایا اس کیا, یعنی کہ گن دکھا کر آپ کو ڈرا کر آپ کے ساتھ زیادتی کی. اچھا, اس کے بعد
3-4 दफ़ा उन्होंने किया। उसके बाद मेरी वालदा ने, एक बाबर नाम का आदमी है जो, जब उसने ये सारे मामलात आपके साथ शुरू किए थे, आपने अपनी वालदा को नहीं बताया कि अम्मी ये जो बंदा है जिसको हम अपना बाप कहते हैं ये जानवर है? जी मैंने उनको बताया है। वो मेरी हर बात को इग्नोर करती थी। मैंने उनको अलिफ से लेकर ये तक, माँ से बंदा कोई बात नहीं छुपा सकता, मैंने सब अलिफ से लेकर ये तक उन्होंने कैसे किया, कैसे शुरुआत की, ऐसे मैंने उनको सब बताया। उन्होंने मतलब सब सुनकर सुनी अनसुनी बात कर दी, कोई सपोर्ट नहीं की मेरी, कोई कुछ नहीं किया। जानवर का नाम क्या है? उस जानवर का नाम है मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद करता क्या है? वो नशा बेचते हैं और उन्होंने रिक्शा रखा हुआ है, और ताकि जो देखने वाले लोग हैं उनको ये पता हो कि ये रिक्शा चलाता है। अच्छा, आम जिंदगी में वो वाज़ेह ये है कि वो रिक्शा चलाता है। उम्र कितनी है उसकी? उम्र उसकी 46 साल है। 43 साल उम्र है? नहीं 46। 46 साल? हाँ जी 46 साल। नाज़रीन ये क़यामत है, 46 साल का बंदा बुजुर्ग होता है और उस जाहिल को, उस जानवर को शर्म नहीं आई। इस वक्त इस बच्ची की 13 साल उम्र है और जब ये मामलात शुरू होते हैं तब ये 11 साल की बिल्कुल बच्ची थी। अच्छा, इस ज्यादती से पहले वो कोई बदतमीजी भी करता था? इससे पहले भी कोई उसने कोई बात की हो, जिस तरह बंदा बातों बातों में जाहिर करता है कि मैं दीवाना हूँ, या इस तरह की कोई चवल मारी है उसने? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं की। जब फर्स्ट टाइम हुआ तो उन्होंने मुझसे सीधी और साफ बात की। उन्होंने एक ही बात की कि तुम किसी को नहीं बताओगी, मैं जो भी करूँगा तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। बस उन्होंने, बंदा पहले होता है कुछ 100 बात करता है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोई पहले आगे पीछे गंदी पीछे हरकत नीच इंसानों का काम होता है, लेकिन उन्होंने पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया। यानी कि एकदम में उसके ज़हन में शैतान आया, फतूर आया और उस जाहिल इंसान ने ये हरकत की। हाँ जी, तो मैंने अपनी वालदा को बताया, फिर मेरी वालदा ने इग्नोर कर दिया। मेरी वालदा ने हर बात को इग्नोर। अच्छा, आपने अपनी वालदा को ये बताया कि ये जो जानवर है इसने मेरे साथ ज्यादती की है, वो जो माँ, जो सकी माँ है जिसको बड़ा बाकमाल रिश्ता कहा जाता है, वो इग्नोर कर देती है इस चीज़ को? इग्नोर कर देती थी। और उसके बाद एक बाबर नाम का आदमी था जो मरी के रहने वाला, और उसको, वो पठान है, उसको बुलाया, उसके साथ सोने पे मुझे मजबूर किया। किसने? मेरी वालदा ने। सकी माँ ये काम करवा रही है अपनी बेटी से कि किसी शख्स को बुला के कह रही कि इसके साथ सोए? हाँ जी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों ऐसा कर रही हैं, मुझे हर बंदे के सामने क्यों जलील कर रही हैं? उस वक्त उन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा जो मैं कह रही हूँ वैसे करना है। रात को उन्होंने भी वही गलीज गंदी हरकत की जो वो करते थे। अगले दिन वो चले गए। मैंने अपनी वालदा से ये बात की, मैं कहा मामा आपको पैसे चाहिए? मुझे पता चल गया था कि इन्होंने उससे पैसे लिए। उस शख्स ने मुझे कहा है। अच्छा, उस शख्स से पैसे लेकर एक माँ जो है वो अपनी बच्ची उसके हाथ में दे देती है? वो शख्स मुझे खुद कह रहा तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पैसे इसलिए नहीं भरे कि तुम ड्रामे करो। तो कहता तुम्हारी माँ ने पैसे मुझसे इसलिए नहीं लिए कि तुम ड्रामे करो, जो तुम्हारा काम है वो करो। मुझे उस वक्त ज़मीन ने जगह नहीं दी कि मैं मर जाऊं। तो अगले दिन जब वो चला गया, मैंने अपनी माँ के आगे ऐसे हाथ जोड़े हैं, पाँव में बैठ के रो के फरियाद की है, मेरा गुनाह क्या है, आपको पैसे चाहिए? मैंने कहा लोगों की बेटियां काम कर रही हैं, हम कर लेंगे, हमसे ये गलीज गंदी नीच हरकत नहीं होती। तो उस दिन उन्होंने काफ़ी मुझे मारा। उन्होंने कहा माएँ तो जो कहें वो करना पड़ता है, माएँ कहें कि कुएं में कूद जाओ तो बेटियों को वो करना पड़ता है, माएँ जैसा कहें बेटियों को वैसा करना पड़ता है। मैंने कहा फिर मैं चुप कर गई, उसके आगे मैं कुछ भी नहीं बोली। तो उस दिन उन्होंने काफ़ी मुझे मारा मुरा। तो मारने मुरने के बाद मैंने उसी दिन फिनाइल की गोलियां खाई हैं। अच्छा, आपने अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई, आपने फिनाइल की गोलियां खाई? फिनाइल की गोलियां खाई। उन्होंने फिर मेरी काफ़ी कंडीशन जो है सीरियस हो गई। फिर मुझे लाइफ में लेके गए, उन्होंने जवाब दिया। लाइफ से आगे एम्बुलेंस में मुझे जिना में लेके गए हैं। जिना में मेरे गुर्दे वाश हुए हैं, तब मुझे ड्रिप लगी हुई थी, और ड्रिप लगी हुई मुझे ऊपर से मेरा स्टेप फादर फिर से वही धमकी दे रहा है कि अगर किसी डॉक्टर को भी बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं चुप करके, मैंने किसी को नहीं बताया। जब मैं घर गई, घर वालदा को भी मैंने बताया कि आपके शौहर ने आज फिर से ये बात की है, जिसको मैं अपना बाप कहती हूँ, आज फिर उसने ये बात की है। तो फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद जब आखिरी दफ़ा उन्होंने मुझसे किया है जनवरी में। अच्छा। आखिरी दफ़ा ज़्यादा जनवरी में हुई है। तो अच्छा, आपने फरनैल की गोलियां खाई हैं, आपको अस्पताल भी ले जाया गया है। यहाँ पर दरिंदगी चेक करें, ये बच्ची अस्पताल में पड़ी होती है और वो बंदा इसको धमकी दे रहा होता है कि यहाँ पर भी किसी को बताया ना तो मैं यहाँ पर पड़ी को मार दूंगा। मरे को क्या मारना, जाहिल इंसान, तुम मरे बंदे को मार रहे हो। अच्छा,
अस्पताल से जब आप वापस आई हैं, ये मामला बिगड़ गया था, आप जिंदगी से तंग आ के आपने गोलियां खा ली थी, उसके बाद भी फिर भी ज्यादती होती रही है? फिर भी ज्यादती होती रही है। फिर भी वो जानवर को ये एहसास नहीं है कि ये भी बेटी है, मेरे भी घर में बेटी हो सकती है? सर मैं जब उनको पहली दफ़ा उन्होंने मुझसे ज्यादती की थी ना, मैंने उनसे ये सवाल किया था, इस सवाल में वज़न देखे, मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, और उनके जवाब में उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास सबूत क्या है मेरी बेटी होने का? क्योंकि वो दरिंदा था, वो जानवर था, एक जानवर, वो शैतान था जिसको एक बच्ची बाप कह रही है, पापा कह रही है। बाप बहुत बड़ा एक लफ्ज़ है, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है वालिद, माँ उससे भी बड़ी चीज़ होती है। बेटी उसको कह रही है कि आप मेरे बाप हैं, वो शैतान आगे से कह रहा है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? फिर बेटा होता क्या है? फिर उस दिन मैं जब लास्ट टाइम मुझसे ये हुआ, तो मैंने उस दिन फैसला कर लिया कि अब जो भी हो जाए, मुझे सारी दुनिया का सामना करना पड़ जाए, लेकिन मैं अब यहाँ पे नहीं रहूँगी। टोटल कितना अरसा आपके साथ ये जो सारा गलीज काम है ये होता है? 2.5 साल। 2.5 साल आपने बर्दाश्त किया है? किया, बहुत किया। जब मेरे बर्दाश्त की हद हो गई थी, एंड हो गया था, मैंने कहा मैं किसी सड़क पे बैठ जाऊँगी। अगर मेरे अपने वालिद भी मुझे, अब क्या पता, उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, हमने उनको भी छोड़ दिया, क्या पता कि आज मुझे वो भी अपनाने से इनकार करते। मैंने कहा मैं सड़क पे बैठ जाऊंगी, किसी दरबार पे लोगों कि मैं यतीम खाने में चली जाऊंगी, लेकिन इनके घर में अब मेरे रहने, मेरे बस की बात नहीं है। साथ ये सलूक ना हो। अल्लाह ताला आपको सब्र दे मेरी बहन। नाज़रीन, अल्लाह ताला की जो अदालत है वो बहुत बड़ी है। दुनिया की छोटी छोटी अदालतें हैं, यहाँ पर इंसाफ मिले या ना मिले, मेरा यकीन है, मेरा अकीदा है और मेरा तवक्कल है मेरे अल्लाह पर कि अल्लाह ताला की अदालत में एक ना एक दिन इंसान को इंसाफ ज़रूर मिलता है। अगर वो बंदा अपने पैसे के, अपनी दौलत के बलबूते पर इस दुनिया से बच जाता है, तो मेरे ख्याल से उसको मेरे अल्लाह ताला की अदालत में ज़रूर सज़ा मिलेगी। ये बेटी है, ये बहन है, ये मेरे मुल्क की बहन है, ये पूरे पाकिस्तान की बेटी है। अगर इसके साथ ज़्यादती हुई है तो समझे पूरे पाकिस्तान की बेटियों के साथ ज़्यादती हुई है। अगर इसको इंसाफ नहीं मिलता तो समझे पूरे पाकिस्तान की बेटी को इंसाफ नहीं मिलता। वजह यह है कि अगर आज इसके साथ ज़्यादती करने वाले दरिंदे को सज़ा होती है तो उससे हज़ारों दरिंदे सीखेंगे, हज़ारों दरिंदों को इस चीज़ का सबक मिलेगा कि ये हुआ था, उसका अंजाम ये होगा। अब दूसरी बात ये है कि इनकी जो छोटी बहन है उसको वहाँ पर रखा गया है, ये चाहते हैं जी हमारी बहन वापस हमें दी जाए। क्या करें, बाकी इस कहानी में सबसे बड़ी बात ये है कि माँ भी कभी कभी जानवर बन जाती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।